کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. پہلے 20 سال میں دین تو بڑا مخالف ہے اور بڑے بڑے انجینئر صاحب کے بارے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں. ہاں ہمارے مسجدوں میں کیا لگتا ہے غلطی پہ ہے انجینئر صاحب یا وہ؟ نہیں وہی غلطی ہے. تو جب ان کے کلپ کو دیکھا بہت سارے ریفرنس انہوں نے دیے تو ریفرنس سے ہم تھوڑے سے متاثر ہو گئے. پھر ان کو دیکھنا شروع کیا اور جب 3 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ یہ بندہ ہی نہیں ٹھیک. کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب؟ 3-4 سال ہو گئے. گمراہ آدمی جی گمراہ نہیں، بالکل امت کا سب سے بڑا فتنہ ایسا ہی آزمائش عالم دین کہتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. آزمائش والا نہیں سر، نہیں وہ آزمائش والا نہیں کہتے، وہ دوسرا کہتے ہیں. ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ جگہ ਨੇ. وہ دیکھیں نا اختلاف کرتے ہیں اور بہت بڑا کرتے ہیں انجینئر صاحب کو، تو وہ ان کا تو اسلام کے قائل نہیں ہے. ان کا کیا لگتا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی اہل حدیث بہت بہتر ہے. یعنی اسلام کے انجینئر صاحب کا اسلام کے قائل نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. خاص فرقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا تعلق ایک خاص فرقے سے ہے، تو اس کو ٹارگٹ بنانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا. حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں جس کو جو ہے نا ہنگامہ بنائے گا. وہی کہ محرم میں ان کو آج اس دفعہ کوئی ایشو ملا نہیں، انہوں نے ایک پرانا کلپ اٹھا کے جو ہے نا اس کو اپنی جو ہے نا چورن بیچنا شروع کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ جو وہ توحید پر کام کر رہے ہیں اس کا بہت اچھا کام ہے، بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو منڈی ٹھوکی ہے سارے بابوں وغیرہ کی، تو ایسا آج سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا. ایسے جو لوگ ہیں جو علماء لوگوں کو بیزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں میرا یہی موقف ہے کہ ان لوگوں نے احادیث کی کتابیں قرآن و سنت کو اندر سے نہیں پڑھا. ان کو اپنے بزرگوں سے جو چیزیں پیڑھی در پیڑھی نسل در نسل ملی ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. جو چیز ان کے فرقے کو فائدہ دیتی ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جو چیز ان کے خلاف ہوتی ہے وہ چھپاتے ہیں. ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਜਬ ਅੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ اور ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ نہیں. ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو، قاری صاحب کو، بہت ساروں کو دعوت دی. تقریباً کافی سارے لوگوں نے ہماری دعوت قبول بھی کی ہے. قاری صاحب نے سب سے پہلے کی ہوگی. بتائیں نا ذرا لاجیکل بندہ اور کون کون ہے؟ آپ نے تو سنا ہے نا، آپ کو تو اندازہ ہوگا. فور ایگزامپل یہ محمد علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کا، ٹھیک ہے نا. اب وہ شادی کے لحاظ سے مجھے مفتی طارق مسعود صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں شادی کے لحاظ شادی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا بھی نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. آج دیکھ لیں اپنا ساڑ نہیں نکالا، انہوں نے کہا نہیں وہ جس بات پہ غلط ہے وہ غلط ہے. بریلوی فرقہ ان کے اوپر غلط الیگیشن لگا رہا ہے، تو دیکھ لیں انہوں نے آج فرقہ واریت ہٹ کے یہ ثبوت بھی دے دیے. یہ بات ایگری کرتے ہیں نا، اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی سرزمین سے آپ آئے ہیں، دیکھیں اولیاء اللہ کبھی؟ ایسے نہیں دیکھے. نہیں کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو؟ وہاں سننا بہت زیادہ ہے. اچھا دربار ہے، ولی نہیں ہے کوئی، زندہ ولی کوئی نہیں، زندہ پیر نہیں دیکھا. وہابی میں رہا ہوں، اہل حدیثوں میں رہا ہوں، تو میں نے ان میں چیز نوٹ کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ ان کو ایک نارمل انسان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، جیسے وہ نارمل انسان ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو میں نے ان کے سیشن لیے ہیں، ان کو سنا ہے، ان کو فالو کیا ہے، اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ جیسا ہمیں بتایا گیا ویسا بالکل بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اگر یہ تھوڑے بہت بھی پڑھے ہو نا، تو رجب بٹ والی بات آج انجینئر صاحب نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے، تو کم از کم وہ 2 سال پرانا کلپ اٹھا کے بھی نہ لے کے آتے، تحقیق کیے بغیر شروع ہو گیا. سارے وائرل کاریں اور سارے سزا کا مطالبہ کاریں، کنڈیم ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ 2 سال پرانی بات آپ کو آج یاد آئی ہے.
सो कॉल्ड आलमदीन बने हुए, या तो ये जानबूझ के करते हैं क्योंकि इनके अपने जो है ना एम्पायर्स उलट रही हैं, इनके अपने जो है ना दुम पे पाँव आ रहा है, या इनका जो अपना एक जिसे कहते हैं निज़ाम चला हुआ था उसको एक किस्म का चैलेंज किया गया है। तो ये या तो ये जानबूझ के करते हैं कि क्योंकि इनको पता है इनके साथ बुरा हो रहा है, या फिर ये बिल्कुल ही लाइल किस्म के लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस वजह से फिर लेकिन वो तो सियासी पार्टी है, वो तो अपने लीडर को नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरीके सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंजीनियर साहब का मामला फ़र्क है, ये तो हसानियत पे चल रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं हक और आज के दौर में काम करना, हक बात की आवाज़ बुलंद करना, ये एक आम आदमी का काम नहीं है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े मिशन कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं उनको अभी तक नहीं पता, मुझे रास्ते में उन्होंने फ़ोन किया, मैंने वीडियो कॉल पे उनको दिखा दिया मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो बाबा का फ़ोन है, बाबा कहते घर ही इधर ही रहना, घर ना। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? जाके मैं बात कर लूँगा सारी, उनको बता दूँगा इनके बारे में, कुछ बताऊँगा, कोई वीडियो दिखाऊँगा इनको, फिर इनको पता लगेगा ना। बस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और फर्स्ट टाइम जेलम आया हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ ही, मेरे फ्रेंड्स हैं सारे। और सेकंड ये है कि जो मैं इनको 2-3 सालों से देख रहा हूँ, लेकिन फिज़िकली जो उनको मैंने देखा है आज, उनको देखने में मज़ा आया और एक एक्साइटमेंट भी थी इस चीज़ की कि इनसे मिलेंगे, तो बस ये ख्वाहिश थी जो पूरी हो चुकी है। लेकिन इंजीनियर साहब का बड़ापन देख लिया आज के। इंजीनियर साहब ने आज अपने को जो हैं उनके मुखालफिन, वो जो हर जुम्मों के खुतबों में लोगों से हाथ उठवाते हैं कि जेल में जाओगे, इसको घसीटोगे, जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो इंजीनियर साहब ने फिर भी ज़र्फ से काम लिया। उन्होंने बरबला कहा है कि भाई वो गलत है। आपको ये आपकी फैमिली, आपके घर वाले, दोस्त ये रोकते हैं? हाँ, तो फिर कैसे टैकल करते हैं? इसका एक अपना नशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम अकेडमी मोहम्मद फरहान कुरैशी। जैसा कि आप देख रहे हैं हाल में रिकॉर्डिंग हो चुकी है ख़त्म। आज सेशन नंबर 208 था और माशाल्लाह फिर बड़ी तादाद में लोग जहलम अकेडमी आए हुए हैं। आज हमारा भी पब्लिक सेशन नंबर 101 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 पब्लिक सेशन हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं माशाल्लाह ताला, और आज 101 होगा। तो आइए आप लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल कदूस नाम। अब्दुल कदूस भाई किधर से आए हैं? सरगोदा से। सरगोदा से? खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आए हैं? खैरियत है? क्या करना था? मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ। अच्छा। अपने दोस्तों के साथ में। अच्छा, ये दोस्त आपका छोटा सा? ये मेरा बेटा है। इसने जिद की है कि अली भाई से मुलाकात करनी है। अच्छा। सारे उलमा से मिलवा दिए। बड़े बड़े उलमा माशाल्लाह मिलते रहते हैं हम। अहले हदीस फिरके से थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान हो गए। फिरका परस्ती नहीं है। फिरका परस्ती नहीं माशाल्लाह। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? ये तकरीबन 2022 से मैं जान शुरू हुआ। अरे 20 साल में दीन तो बड़ा मुखालफ हैं और बड़े बड़े इंजीनियर साहब के बारे में एतराज़ात किए जाते हैं। होते हैं। हाँ, हमारे मस्जिदों में होते हैं। क्या लगता है गलती पे है इंजीनियर साहब या वो? नहीं, वही गलती पे। लेकिन इंजीनियर साहब का ज़र्फ देख लें, आज उनके ऊपर जो केस चल रहा है, जो भी वो एक मसले में फंसे हुए हैं, तो इंजीनियर साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने हक बात किया कि भाई उनका नहीं बनता। सही बात है कि नहीं? अब तो उनको शर्म करनी चाहिए वैसे। हाँ जी, हम क्या करें। हाँ क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं। चले, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। और मुझे इतना शायद मज़ा ना आया जितना मेरे बेटे को मज़ा आया। अच्छा, बेटे से पूछ लेते हैं। बेटा क्या नाम है? अनस। अनस क्या करने आए हो? इंजीनियर साहब को जानते हो? इंजीनियर साहब को जानते हो? मैं देख रहा था सो रहे थे तुम। नींद आ गई थी? इनके नारे का आता नारा इनका नारा। मेरे नबी चाय कहीं नहीं, तेरे बापे ते शाही कहीं। माशाल्लाह, गुड। चलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? उस्मान अली। उस्मान अली भाई किधर से? सियालकोट से। सियालकोट से। खैर खैरियत जी। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? तकरीबन 5 साल हो गए। कैसे तारुफ हुआ था? ऐसे नमाज पे सर्च कर रहे थे। अच्छा। इंजीनियर साहब का क्लिप आ गया था। तो मिसबाई साहब को नहीं सुना आपके सियालकोट वाले? मिसबाई साहब को सुनते थे। वो तो कहते हैं ये तो उम्मत में सबसे बड़ा फितना है। उनको ही पहले सुन रहे थे ना। अच्छा। तो नमाज पढ़ने का शो जारी हुआ, तो फिर सर्च की तो इंजीनियर साहब का क्लिप आया। तो जब इनके क्लिप को देखा, बहुत सारे रेफरेंस इन्होंने दिए, तो रेफरेंस से हम थोड़े से मुतासर हुए। फिर इनको देखना शुरू किया और जब 3 माह के बाद पता चला कि ये बंदा ही नहीं ठीक,
इनके तो सब खिलाफ हैं। तो फिर आस्ता आस्ता हम भी इधर उधर हुए थोड़े से, फिर देखते देखते हमें समझ लग गई कि यही हक का रास्ता है, यही हक का रास्ता है। कुरान और सुन्नत बताते हैं, कुरान और सुन्नत भी कोई चीज़ होती है, हदीस कोई चीज़ होती है, आयत कोई चीज़ होती है। तो उसको सुनकर हमने अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, महल्ले वालों को, कारी साहब को, बहुत सारों को दावत दी। तकरीबन काफ़ी सारे लोगों ने हमारी दावत कबूल भी की है। कारी साहब ने सबसे पहले की होगी? कारी साहब को तकरीबन 2 साल के बाद की थी। अच्छा, कर ली उन्होंने सुबह फजर की नमाज पे जो ना ऐलान किया था कि फ़िरका वारियत हराम है, सब मुसलमान हो। फिर एक जो पप्पा जानी साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने उनकी मत मारी। अच्छा। फिर उन्होंने यानी हमारे साथ मुखालफत शुरू कर दी। हाँ, यही मसला, उनके साथ रोटी जुड़ी हुई है ना। बेचारे क्या करेंगे ये। चलें, कैसा आज का एक्सपीरियंस? ये तकरीबन मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा आकर। आज काफ़ी तादाद में देखा, बंदे कितने हैं? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बैठने को जगह भी नहीं मिल रही थी। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? तहलील नवाज। तहलील नवाज भाई, कहाँ से? टेक्सला से, वाकई से। माशाल्लाह जी, वेलकम आपको जेएलएम अकेडमी में। खैरियत, कैसे आना हुआ? बस इंजीनियर साहब से मुलाकात। कब से जानते हो इंजीनियर साहब? 3-4 साल हो गए। गुमराह आदमी है जी? गुमराह नहीं, बिल्कुल उम्मत का सबसे बड़ा फितना। ऐसा ही आजमाइश, आलम दीन कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा। आजमाइश वाला ना सर, वो आजमाइश वाला नहीं कहते, वो दूसरा कहते हैं। आजमाइश वाले हैं ना सर। ठीक है, उनके लिए तो काफ़ी आजमाइश है ना सर। हाँ, उनके हाँ। तो एक तो मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, वैसे मेरा एक सवाल है कि इंजीनियर साहब को लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन ये आलम दीन जो इनके बारे में इतने अलकाबात जो देते हैं, वो क्यों दे रहे हैं? क्या मसला उनको? बस ये जो सबसे बड़ा जो फितना है इन्होंने जो ख़त्म किया है, आजमाइश वाला, फ़िरका वारियत वाला। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा एक मसलिक से जुड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल तो पेश आएगी। अब कितने न्यू उलमा हैं जो तफ़रक हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर चेंजिंग आ रही है, वो जो है ना मोड़ रहे हैं और ऐलान बरात कर रहे हैं। बस अल्लाह करेगा बेहतर होगा। इंजीनियर साहब जो इनका असल चेहरा दिखाते हैं ना, आज आपने वो जो करंट अफेयर था रजब भट्ट के ऊपर, तो इंजीनियर साहब ने बताया ना कि देख लें उलमा ये काम करते हैं कि 2 साल पुराना क्लिप उसका उठा के वायरल किया है। यही काम है ना उलमा का। तो इंजीनियर साहब जो है ना, उनके मुंह पे गर्म तौलियां मारते हैं, लोगों को असल चेहरा दिखाते हैं। जाहिर सी बात, ये सब करेंगे फिर बुरा तो लगेगा ना उनको। बुरा तो लगेगा उनको, सही हो गया। और कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया, बहुत दिली खुशी हुई है। और तकरीबन 3-4 साल बाद हर बार सोचा कि आएंगे और आज हिम्मत करके आ गए, और आज बहुत खुशी हुई है। वो प्रोटोकॉल मिला है जो है ना, पहले जिधर भी जाते हैं वो मज़ा नहीं फील हुआ, आज वो मज़ा फील हुआ। चलो, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आज भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? अताउल्ला भाई, किधर से? सियालकोट से सर। सियालकोटी फिर आए ने माशाल्लाह, आज वड्डी तादाद जी बिल्कुल। सियालकोटियां नाल प्यार ही सानू बड़ा है माशाल्लाह। इंजीनियर साहब ने बड़ा प्यार करते हैं। बिल्कुल इस तरह ही है जी। इस तरह ही है ना जी बिल्कुल। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। और दूसरी गल इंजीनियर साहब क्यों ना करन, देखो ना हुण अज रजब भट्ट दे उत्ते इंजीनियर साहब ने गुफ्तगू की। हाँ जी बिल्कुल। उहदे च भी वेख लो 2 साल पुरानी आलम दीन ने कोई तहकीक नहीं करते, 2 साल पुरानी वीडियो चुक के ला दी कि देखो गुस्ताखी करते हैं। इन्हां नाल ते फिर यही टकरना चाहिए ना, इहो जिहे बंदे टकरना चाहिए। बिल्कुल इस तरह ही किसी ने तहकीक नहीं की, किसी ने उन्हें किसी भी चीज़ का तुसीं हवाला दे के गल करो, हदीस का हवाला दो, कुरान का हवाला दो। जिस तरह वो रजब भट्ट दी जिहड़ी वीडियो चढ़ी है, ਅਸੀਂ कंडेम करने हाँ जी, अगर कोई एक बंदा चेक कर लेंदा। हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ एक फितना फैलाया गया और इस तो अगे कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? इंजीनियर साहब बहुत आया लाइव ही मज़ा आया जी, पहली दफ़ा ही आया जी इत्थे ते बहुत ही अच्छा लगा जी। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करीदा ही और ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगा इंशाल्लाह शुक्र। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या नाम है भाईजान? तलहा। तलहा भाई किधर से? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर कौन सी जगह से आए हो? सदर कैंट। सदर कैंट से। खैरियत, कैसे आना हुआ? बस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और फर्स्ट टाइम जेएलएम आया हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ ही, मेरे फ्रेंड्स हैं सारे। और सेकंड ये है कि जितना मैं इनको 2-3 सालों से देख रहा हूँ,
लेकिन फिज़िकली जो उनको मैंने देखा है आज, उनको देखने में मज़ा आया और एक एक्साइटमेंट भी थी इस चीज़ की कि इनसे मिलेंगे, तो बस ये ख्वाहिश थी जो पूरी हो चुकी है। दैट्स इट। ये तो गुमराह आदमी है, उम्मत का सबसे बड़ा दज्जाल, फितना, उलमा कहते होंगे। आई डोंट नो, मुझे इतनी खास नॉलेज भी नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे बातें काफ़ी जो स्पेशली इनकी वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं साइंस और इस्लाम के बारे में। सो उनसे इंस्पायर होके मैं यहाँ पे आया हूँ, और बाकी जो कहते हैं बाबे शाबे की बातें जो करते हैं ठीक कहते होंगे, इनकी बातें इतनी खास मतलब कि बुरी नहीं होती। नहीं। अच्छा, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अकेडमी में आए हैं, देखें यंग जनरेशन भी आई हुई है, बूढ़े लोग भी आए हुए हैं, जवान लोग भी आए हुए हैं, और ये बंदे इनके अपने होते हैं। एक एलिगेशन ये भी लगाते हैं बंदे अपने होते हैं, कमरे इसी सवाल भी अपने बंदे ज़्यादा लाते हैं, है इस तरह की कोई बात? ऐसे नहीं है। जिस टाइम हम आए हैं, हालांकि हमारा टाइम था सुबह 7 बजे का, हमें आना था, थोड़ा सा हम घंटा लेट हो गए हैं, और बाकी यहाँ पे तो काफ़ी ऑलरेडी रश था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे काफ़ी ऑलरेडी रश होगा। हम आए हैं, आई थिंक हाफ रूम तो फुल था, सो फिर भी एडजस्टमेंट हमने कर ली थी यहाँ पे, तो बाकी ठीक था। जितना भी एक्सपीरियंस मेरा रहा अभी आज। मुलाकात की है? अभी जाना है मैंने। चल मुलाकात करके आज और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, किधर से? लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? कैंट से। आपका? मेरा नाम उमैर है और सदर कैंट से हैं लोग। लाहौरी है आज माशाल्लाह। कितने बंदे हो जी? हम 5 बंदे आए हैं। 5 दोस्त आए हो? सब इंजीनियर साहब को सुनते हो या कोई ज़बरदस्ती वाला भी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजीनियर साहब को सुनते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। हाँ। और माशाल्लाह आज से नहीं बल्कि हम जब से 3-4 साल से उनको फॉलो कर रहे हैं, और मैं उनका करना चाहूँगा प्लस पॉइंट ये है कि मैं जो बाय बर्थ हूँ मैं अहले हदीस था, ठीक है। उनको सुनकर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, और अब मैं माशाल्लाह अपने आप को, जब मुझे कोई पूछता है कि आपका फ़िरका क्या है, तो मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान। माशाल्लाह ताला। दूसरा ये है कि जो वो तौहीद पर काम कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा काम है, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने जो मंजी ठोकी है सारे बाबों वगैरह की, तो ऐसा आज से पहले किसी ने काम नहीं किया, तो इस बात पे मैंने बड़ा अप्रिशिएट करूँगा। अहले हदीस आपने कहा, मेरा भी तल्लुक़ अहले हदीस है। अहले हदीस के साथ तो माशाल्लाह अकायद के लिहाज से तो कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन वो इंजीनियर साहब इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं? क्या लगता है? मुझे जो लगता है क्योंकि जो हमें इंजीनियर, जब मैं बेसिकली खुद इंजीनियर वहाबी में रहा हूँ, अहले हदीस में रहा हूँ, तो मैंने उनमें चीज़ नोट किया कि जो आप सल्लम है ना, वो उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे वो नॉर्मल इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने इनके सेशन लिए हैं, इनको सुना है, इनको फॉलो किया है, इसके बाद मुझे पता लगा कि जैसा हमें बताया गया वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बरक्स अगर आप देख लें, मेरी फार्मेसी है, उसी के साथ मस्जिद है, वहाँ पे रफ़ा देन के साथ नमाज़ पढ़ता हूँ। तो एक दिन मैं नमाज़ पढ़ा तो उन्होंने मुझे नमाज़ नहीं पढ़ने दी कि आप अपनी जाके मस्जिद पे पढ़ा कर, तो ये मुझे चीज़ें बड़ी बुरी लगी, लेकिन इससे मुझे ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि मैं बिल्कुल राइट पे चलता। लेकिन इंजीनियर साहब का बड़ापन देख लिया आज के। इंजीनियर साहब ने आज अपने वो जो हैं उनके मुखालफिन, वो जो हर जुम्मों के खुतबों में लोगों से हाथ उठवाते हैं कि जेल में जाओगे, इसको घसीटोगे, जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो इंजीनियर साहब ने फिर भी ज़र्फ से काम लिया। उन्होंने बरबला कहा है कि भाई वो गलत है। हमारा दीन भी इसी बात की तहकीक करता है कि अखलाक सबसे बेहतर। ये जो ट्रूथ लवर, वो तो सच्चाई को सलाम है, सीधी सी बात है। ये चीज़ भी इनकी बड़ी अच्छी लगती है, क्लिक करती है, और ये हमारे लिए भी मैसेज है कि दुश्मन जितना मर्जी आपके खिलाफ हो, लेकिन आपने अखलाक से चलना। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताएं, ये जो रजब भट्ट वाला आज करंट अफेयर इंजीनियर साहब ने बयान किया, ये हमारे उलमा ये जो उनके वो क्लिप चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता वो 2023 का क्लिप है? उनको पता होना चाहिए। हमें बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत पे अगले बंदे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, ठीक है। पहले रिसर्च करें, ठीक है। अगर आपको सबूत मिलते हैं किसी चीज़ के कि आपको पता हो कि ये वीडियो रिसेंट बनी है, न्यू बनी है, तो फिर जाके आप उसका कोई आगे पेश करें। फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं बोलता है इंजीनियर हमारे साथ ये सलूक करता है, सही करता है ना? सही बोलते हैं, बिल्कुल सही करता है। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। यहाँ की इन्वायरमेंट, इंतज़ामिया बहुत अच्छी थी, और बस ये है कि सीटिंग के लिहाज से थोड़ी तंगी है, इसलिए हम बार बार कहते हैं जब एक दफ़ा दोबारा ना आए, इसलिए कहते हैं। बाकी खाना वगैरह सुबह नाश्ता मिला हमें बहुत अच्छा, चाय समोसा भी मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी इसी में मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा कि मैं एक मशवरा देना चाहूँगा जी कि आप अपना एक जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है कि अगर जिसने दूर दराज से आना है उनको आप कम से कम, मैं तकरीबन 3-4 हफ्ते से आने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। आपके जो नंबर आपने दिया हुआ है उसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो अगर दूर दराज से आते हैं, होटलिंग बहुत महंगी है इधर, एक्सपेंसिव है,
तकरीबन हमें रूम मिला है 7,000 में पड़ा है एक नाइट का, वो भी 12 बजे हमने चेकआउट किया। तो चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम भैया? दिलावर अली। दिलावर किधर से? लाहौर से आए हो। लाहौर कौन सी जगह से? काला शकाको टोल प्लाजा के पास। हाँ माशाल्लाह, अभी 5 भाई लाहौर से और थे, वो सदर से आए हुए थे। कह रही थे कैसे आना हुआ? जी इंजीनियर साहब से। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? 2023 से। गुमराह आदमी नहीं है? नहीं। उम्मत का सबसे बड़ा फितना है? नहीं। आलिम दीन क्यों कहते हैं? बस वो कहते हैं ना? कहते हैं। हाँ मैंने देखा है वो। जी जी कहते हैं। हाँ। गलत कहते हैं। गलत कहते हैं जी। अच्छा जी, आप मुझे बताओ आपको तारुफ कैसे हुआ इंजीनियर साहब का? मुझे मेरे साथ वाले हमसाये सुनते थे, तो पहले मुझे नेगेटिव भी तारुफ हुआ था। मैं लाहौर में होता था, शॉप पे काम करता था, तो वहाँ पे एक दफ़ा देखा था, तो मैंने उनसे पूछा था ये कौन है, वो कहते थे इसको छोड़ो, इसको नहीं सुनना। तो तब तारुफ हुआ था, पर 2021 की बात है, मगर इग्नोर कर गया था। फिर 2023 में तारुफ हुआ मुझे, तब से मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं जी। तब्दीली आ गई? जी। घर में भी लेके आए हो? जी, घर वाले वाले साहब भी हैं, मगर वो सही है माशाल्लाह। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अकेले आए हो आज? जी जी ठीक हो, पैसे पूरे हो गए, थकावट दूर हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात भी की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाईजान? शाहजेब। शाहजेब भाई किधर से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। खैर खैरियत, कैसे आना हुआ जनाब? ये इंजीनियर साहब से मिलो, मुलाकात के लिए आए थे। इंजीनियर साहब से? गुमराह आदमी है, उम्मत का सबसे बड़ा फितना। जी होंगे, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है। आपके लिए नहीं? मिचले आलिम दीन कहते हैं, हमारे लिए तो मिचले राह बने। माशाल्लाह ताला। कब से जानते हैं इनको? मैं 4 साल से, पहले भी 2 दफ़ा आया हूँ। पहले 2 दफ़ा आए हैं। और आपको ये आपकी फैमिली, आपके घर वाले, दोस्त ये रोकते सारे नहीं? रोकते हैं। हाँ, तो फिर कैसे टैकल करते हैं? इसका एक अपना ही नशा है। सही होगा। अच्छा, आज इंजीनियर साहब ने वो करंट अफेयर के तौर पर एक वहाबी आलिम दीन है, उनके बारे में हाँ जी, वो लोग तो जुम्मों के खुतबे में इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ बातें करके, तकरीरें करके लोगों के हाथ हटवाते हैं। जी जी। इंजीनियर साहब ने आज अपना ज़र्फ दिखाया, उन्होंने हक बात को सपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि नहीं यार ये इसका नहीं बनता। बिल्कुल। तो अब तो इनको शर्म आ जानी चाहिए। जी बिल्कुल आनी चाहिए। आनी चाहिए ना? बिल्कुल। सही हो गया। चलें, आप मुलाकात भी करके आए हैं? जी मिल के आया हूँ। और कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। आज वहाँ काफ़ी ज़्यादा थे? जी बिल्कुल। थकावट हो गई होगी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आओ जी, और कौन है आज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? मेरा नाम तजम्मल शराज है जी। तजम्मल शराज मेरा नाम है, मैं सरगोदा से आया हूँ। तजम्मल भाई, आज माशाल्लाह सरगोदा से काफ़ी लोग हैं। जी जी। इकट्ठे तो नहीं आगे गाड़ी करा के? नहीं, मैं अकेले। अकेले आए हैं। जी जी। तजम्मल भाई किधर? खैर खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुमराह शख्स है, इतनी दूर आप उसके नहीं, पास नहीं, हो हो ही नहीं यार, उम्मत का सबसे बड़ा फितना है। देखिए भाई, मैं शुरू से अल्लाह पाक ने घर से तरबियत ऐसी दी थी कि हम ये जो शिरक वाले, बिदत वाले काम, इनसे बचे हुए थे। ठीक है। तो एक रहनुमा की ज़रूरत थी कि अल्लाह ताला एक आलिम दीन की शक्ल में एक ऐसे बंदे की मेरे दिल में थी कि कोई ऐसा रहनुमा मिले कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का बताए। तो एक दोस्त ने तकरीबन 2.5-3 साल पहले मुझे इंजीनियर साहब के बारे में बताया। मैंने ना सिर्फ इनको सुना, इनका चैनल विज़िट किया, मैंने हदीस की किताबें खोल के देखी, मैंने सारी सर्च की, मैंने फ़ज़ाइल अमाल और जो सब हिस्ट्री है अपनी माशाल्लाह दावत हक़ की सब किया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दिल मुतमईन है। अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर दे और हमें भी नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं वो इनके खिलाफ तकरीरें करते हैं जुम्मों के खुतबों में। आज तो एक वहाबी आलिम दीन है लाहौर वाले, जिनके खिलाफ आज करंट अफेयर भी हुआ है। जी जी। वो तो जुम्मे के खुतबों में हाथ उठवाते थे कि हम जेल में जाएंगे, इसको घसीटेंगे। जी जी। वो पंजाबी में कहते हैं ना, दाढ़ थल्ले आ गए ना। जी बिल्कुल। तो आज आग उनके घर तक भी पहुंच गया सही है। बात है। ऐसे जो लोग हैं जो उलमा लोगों को बेजार करने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं, जी, उन जी। लोगों के बारे में क्या कहते हो? उन लोगों के बारे में मेरा यही मौक़िफ़ है कि उन लोगों ने हदीस की किताबें, कुरान और सुन्नत को अंदर से नहीं पढ़ा। उनको अपने बुज़ुर्गों से जो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल मिली हैं, वो लोगों को बताते हैं। जो चीज़ उनके फ़िरके को फ़ायदा देती है वो लोगों को बताते हैं, और जो चीज़ उनके ख़िलाफ़ होती है वो छुपाते हैं। उधर ये कहते हैं जी ये गुमराह है, कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, कुरान का तर्जुमा ना पढ़ना। ठीक है, थोड़ी सी बंदे में अकल हो, सेंस हो, बंदा थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, समझ आ रही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है जी। अगर ये थोड़े बहुत भी पढ़े हो ना, जी, जी। तो ये रजब भट्ट वाली बात आज इंजीनियर साहब ने उसके ऊपर भी बात की है। जी, जी। तो कम से कम वो 2 साल पुराना क्लिप उठा के भी ना लेके आते, जी, बिल्कुल। तहकीक किए बगैर शुरू हो गया, सारे वायरल कर रहे हैं और सारे सजा का मुतालबा कर रहे सही हैं, बात। कंडेम हम भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये 2 साल पुरानी बात आपको आज याद आई है? बस देखे ना जी, जब लोग बराबरी नहीं कर सकते तो
बुराई करना शुरू कर देते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इल्म के हवाले से तो कोई बराबरी में नहीं आ सका, तो लोगों ने यही कुछ करना था। सही हो गया। कैसा है जी आज का एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम तलहा है। तला भाई किधर से? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर जे रोड से। जे रोड से, हाँ जी। माशाल्लाह लाहौर ये भी आज काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। हाँ जी, बस सुबह सुबह निकल गए तो फजर की नमाज़ पढ़ गए, हाँ, पहुँच हाँ। गए अल्हम्दुलिल्लाह। किधर? जेलम अकेडमी? हाँ जी। ये तो गुमराह आदमी नहीं है वैसे। कौन? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। नहीं गुमराह फितना, नहीं, उम्मत का नहीं फितना। ऐसे नहीं कहते। नहीं मैं नहीं कहता, ये उलमा कहते हैं। नहीं नहीं आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं, वो तो सुनना है, वो मैं तो उनकी बात कर वो रहा तो हर कोई किसी दूसरे को कहते ही कहते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि जो बंदा कोई अच्छी बात बता रहा है उसकी अच्छी बात पकड़ लो, अगर आपको समझ लगती है कि अच्छी बात है, तो अगर कोई गलत बात कर रहा है तो वो आप कहते हो कि भैया गलत बात कर, ठीक आपको है। क्या लगता है अच्छी बातें लगती हैं? गलत बातें मैं लगती तो सारों को सुनता हूँ, सारों को सुनता हूँ। जिसकी मुझे बात अच्छी लगती है या लॉजिकल लगती है कि हाँ ये बात ठीक कर रहा है, तो मैं उसकी बात अपना लेता हूँ। बताएं ना ज़रा लॉजिकल बंदा और कौन कौन है? आपने तो सुना है ना, आपको तो अंदाजा होगा। फॉर एग्जांपल ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब कराची में, ठीक है ना। अब वो शादी के लिहाज से मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, शादी के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि मेरा भी निकाह नहीं हुआ है, ठीक है ना, मुझे लिहाज से मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि वो मुझे ना थोड़ी क्लिक करती है एक समझ इस बात ना कि वो हाँ यार ये बात बंदा ठीक कर रहा है। सही हो गया। वो अली मिर्जा साहब इतना निकाह के बारे में इतनी बात नहीं करते, खैर वो मतलब वो दूसरे फिरकों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब फॉर एग्जांपल अहले हदीस की आप मस्जिद में चले जाएँ, माशाल्लाह इतनी प्यारी करात करते हैं, ठीक है। और जो अगर देवबंदी की मस्जिद में चले तो फटाफट तरावियाँ पढ़ते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं ना हर चीज़ को देख के उस हिसाब से मैं जो चीज़ अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल मैं रमज़ान में तरावियाँ मैंने अहले हदीस की मस्जिद में पढ़ी है, ठीक है, या मोहम्मद अली मिर्जा का लेक्चर लेता हूँ, ठीक है। और घर बैठ के बस शादी की बातें सुननी तो सारी अच्छा जी, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अलहमदिल्ला बहुत अच्छा। मुझे तो मैं तो इम्प्रेस हुआ हूँ कि जो मैनेजमेंट का सिस्टम दिया है ना, माशाल्लाह एक तार से लोग आ रहे हैं, आज ये बैठ जाए, ये कर लें वो कर लें, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। बहुत शुक्रिया जी। आज अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम भाईजान? जी मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई किधर से? मुल्तान से। माशाल्लाह, मुल्तान से? जी जी। अकेले? अजी अकेले आए हैं। स्पेशल औलिया अल्लाह के सरजमीन से आप आए हैं। देखे औलिया अल्लाह कभी? ऐसे नहीं देखे। नहीं कोई एक्सपीरियंस हुआ हो? वहाँ सुनना बहुत ज़्यादा है। नहीं। अच्छा, दरबार है, वली नहीं है कोई, जिंदा वली कोई नहीं, जिंदा पीर नहीं देखा। अच्छा जी, ये बताएं इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ? सन 2014 में यूनिवर्सिटी लाइफ में। ठीक है। नेगेटिव था पॉजिटिव था? नेगेटिव हुआ था तो उसके बाद भी पॉजिटिव बन गया। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, तो ये समझाते भी हैं ना? जी जी। आपको भी तकलीफें उठानी पड़ी? अभी तक उठानी पड़ रही है। हाँ, बड़ी मुश्किल से आई। हाँ। अच्छा, क्या लगता है इंजीनियर साहब की जो बातें हैं, यंग एज जितने भी ये लड़के हैं, नई यूथ जो है ये तो सुन रही है, समझ रही है, आलम दीन इंजीनियर के खिलाफ तकरीबन तमाम मुकादमे फ़िक्र उन्होंने एका किया हुआ है, सब इंजीनियर साहब को बुरा भला कहते हैं। ये क्यों? दुकानें बंद हो जाती हैं, दुकानें और कोई वजह नहीं, दुकानें बंद हो जाती हैं। और एक वो जो आज करंट अफेयर के तौर पर इंजीनियर साहब ने कहा है, वो जो आलम दीन है लाहौर वाले, वो तो जुम्मों के खुतबे में हाथ उठा के कहते थे, आज अपने घर तक आग पहुंची है ना उनकी, वो जो उनके ऊपर भी गुस्ताखी का फतवा लग रहा है। लेकिन इंजीनियर साहब ने आज भी अपने ज़र्फ़ का दिखाया, बड़ा ज़र्फ़ दिखाया उन्होंने। देख लें आज कम से कम वो हक पे के ऊपर खड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि नहीं यार इस मामले में वो गलत नहीं है। जी बिल्कुल सही। अब तो उनको चाहिए कि वो भी शर्म करें, करनी चाहिए, मेहरबानी करें, मेहरबानी करनी चाहिए। कैसा रहा जी आज का एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी की है? जी मुलाकात की है जी। थकावट दूर हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाक। आए जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भजन? सामल ज़िया नाम है। सामल ज़िया। सामल ज़िया भाई। जी जी। सामल भाई कहाँ से? लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? टाउनशिप में बेसिकली रहता हूँ, आजकल मैं इस्लामाबाद होता हूँ। लाहौर ये भी आज माशाल्लाह बहुत तादाद में है। हाँ, आज काफ़ी बंदे, 5वां छठा लड़का जिससे मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। ओवरऑल भी जितने लोगों से मैं मिला हूँ ना, काफ़ी तादाद लाहौर से लोगों की आई हुई है। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। लाहौर ये हक कबूल करने में भी आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कब से तारुफ हुआ आपको इंजीनियर साहब का, कब से जानते हैं? नहीं, मैं तो अगर आप सही पूछे ना, वीडियोस तो मैं देख रहा हूँ तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। मैं यूनिवर्सिटी दौर से ना इंजीनियर साहब की लेक्चर्स वीडियोस वगैरह देखता आ रहा हूँ। तब ये जब छोटे कैमरे से रिकॉर्डिंग चलती थी उस वक्त से मैं देखता आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला इत्तेफाक हुआ है इधर आने का,
और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, दोस्तों वगैरह के साथ ही आए हैं। वो मेरे दोस्त भी जो हैं वो भी हम यूनिवर्सिटी दौर से जो है ना सुनते आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपको क्या लगता है इंजीनियर साहब, यंग एज जितने भी यूथ है हमारी, और कम से कम पढ़े लिखे बंदे को बात अब समझ आ रही है, अब दुनिया में तब्दीली दीन के पॉइंट ऑफ व्यू सबको नज़र आ रही है, गली गली में नज़र आ रही है। अभी भी आलम दीन देखें, तमाम मुकातबे फिक्र के एका करके इंजीनियर साहब के खिलाफ ज़बान दराजी, कभी फितना, कभी कादियानी, क्यों वजूहत है ना। एक तो वजह ये बन जाती है कि ये लोग जो हैं वो सही इंजीनियर साहब वाली बात है कि एक तो जाहिल हैं और दूसरे जो है ना या फिर जानबूझ के करते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक वजह ही है कि जो आलम दीन जितने सो कॉल्ड आलम दीन बने हुए, या तो ये जानबूझ के करते हैं क्योंकि इनकी अपने जो है ना एम्पायर्स उलट रही हैं, इनके अपने जो है ना दुम पे पाँव आ रहा है, या इनका जो अपना एक जिसे कहते हैं निज़ाम चला हुआ था उसको एक किस्म का चैलेंज किया गया है। तो ये या तो ये जानबूझ के करते हैं कि क्योंकि इनको पता है इनके साथ बुरा हो रहा है, या फिर ये बिल्कुल ही लाइल्म किस्म के लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस वजह से फिर इस तरह की जो है हालत तो नज़र आ रही है और जिसे कहते हैं ना बदनीयती वो भी नज़र आ रही है। करंट अफेयर के तौर पर इंजीनियर साहब ने, वो एक यूट्यूबर है व्लॉगर रजब भट्ट, उसके बारे में भी आज इंजीनियर साहब ने बात की। तो जहालत उलमा की नजर आ रही है। 2 साल पुराना क्लिप चलाया है, कोई तहकीक नहीं, कोई कुछ नहीं, वो एक फसाद खड़ा कर दिया खास फिरके को टारगेट करने के लिए, क्योंकि उसका ताल्लुक एक खास फिरके से है, तो उसको टारगेट बनाने के लिए जो है उन्होंने ये हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं जिसको जो है ना हंगामा बनाएगा। वही कि मुहर्रम में इनको आज इस दफ़ा कोई इशू मिला नहीं, उन्होंने एक पुराना क्लिप उठा के जो है ना उसको अपनी जो है ना चूरन बेचना शुरू कर दिया। सही है, ऐसे ही। कैसा रहा जी आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। आप आए, सफ़र करके आए, आज रश भी काफ़ी था, आज रश भी काफ़ी था, थकावट भी होगी एक्सपीरियंस था। नहीं, थकावट नहीं हमें होती है, हम असल में ट्रैवल करने के आदी है। मैं तो सुबह फजर के बाद से अभी तक सोया भी नहीं हूँ, तो 3-3:30 बजे का मैं उठा हुआ हूँ, तो अभी ट्रैवल भी करके आए, अभी वापस भी जाना है और इंशाल्लाह सुबह ऑफिस मुलाकात भी हुई है। मुलाकात सिर्फ सलाम दुआ मतलब जो तस्वीर हुई है। नहीं, आप मुझे बताएं, ये जो और बड़े बड़े नाम हैं ये भी इस तरह मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे मिलते। तो यही बड़ी बात है। इंजीनियर साहब आपके लिए तो अकेला बंदा है ना, उनके लिए वो 500 बंदा जिसको मिल रहा है, 500 बंदों के साथ तस्वीर की चाहिए, यही बड़ी बात है। फिर उसके अलावा नाश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा। मुझे चने खा के लाहौर की याद आ गई। इस्लामाबाद में ऐसे चने मिलते नहीं है, तो जेलम में ऐसे चने मिल गए हैं, तो वो चने खा के फिर दूध पत्ती का जो टेस्ट है वो मुझे ना वो लाहौर की याद आ रहा था। मेरा मूड नहीं था नाश्ता करने का, दोस्तों ने चखाया ना, तो मैंने फिर आधा पौना नान खा लिया और चाय पी ली है कि वो माशाल्लाह जो टेस्ट यहाँ पे मिले ना चनों का, वो इस्लामाबाद में तो कहीं नहीं मिलता, लाहौर में ही मिलता है। चले जी, ये अल्लाह की खानगाह है, अल्लाह का लंगर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और कौन है सर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? नबील जावेद। नबील जावेद एडवोकेट, माशाल्लाह ताला। कहाँ से? लाहौर से हूँ जी मैं। लाहौर? आज लाहौर बहुत सारा इकट्ठा हुआ है यहाँ पे झेलम अकेडमी में। हाँ जी, बस चूँकि देखिए इनकी तालीमात तो पूरे मुल्क में फैल रही है, ठीक है, तो जहाँ से लोग जहाँ लोगों को उनका इल्म होता है उनकी तालीमात सुनते हैं, लोग आते हैं बिल्कुल उनके पास। नहीं, वैसे ये तो गुमराह आदमी है, उम्मत का सबसे बड़ा फितना है, मैंने तो उलमा दीन ये कहते हुए। लेकिन जी मेरा जो अपना ज़ाती राय है, ये जिस तरह मामे हुसैन निकले थे फितनों के ख़िलाफ़ और अकेले निकले थे, तो इंजीनियर साहब आज के हुसैन हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और एक वैसे आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, इंजीनियर साहब ना एक वो सियासी कायद हैं, सियासी जमात के लीडर हैं, उनके बारे में आजकल ना इंजीनियर साहब थोड़ा सा बोले ना, उनकी हकीकत उनको दिखाई, तो उनकी जमात के वो कहते हैं जी ये हुसैन के ख़िलाफ़ जो है ना यजीद के साथ खड़ा हो गया, हुसैन के ख़िलाफ़। जी इंजीनियर साहब को आपने कहा ना हुसैन है, तो मुझे वो बात याद आ गई कि इंजीनियर साहब को भी यजीदी बना दिया था। देखिए जी, वो तो एक सियासी पार्टी है, वो तो अपने लीडर को नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरीके सपोर्ट करेगी। लेकिन इंजीनियर साहब का मामला फ़र्क है, ये तो हुसैनियत पे चल रहे हैं बेशक, और ये जो काम कर रहे हैं हक, और आज के दौर में ऐसे काम करना, हक बात की आवाज़ बुलंद करना, ये एक आम आदमी का काम नहीं है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े मिशन कर रहे हैं माशाल्लाह, बेशक, जिसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इंजीनियर साहब को यंग जनरेशन सुन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हम चेंज भी देख रहे हैं, गली गली मस्जिद मस्जिद मोहल्ला मोहल्ला में चेंज नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक ये आलम दीन इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ जो आपको पता है अलक़ाबात दे रहे हैं, क्या ये अब ये समझ नहीं रहे, समझना नहीं चाहते, या ये वाकई इनको गुमराह समझते हैं? आपको क्या लगता है? सर, ये जो बाकी जो लोग हैं ये खुद गुमराह हैं, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इन लोगों को जिस तरह गलत दीन के ऊपर कायल किया हुआ था, अब उनकी हकीकत खुल रही है। अब माशाल्लाह जिस तरह इंजीनियर साहब ने हुसैनियत का कलम पकड़ा हुआ है और जिस तरह ये हुसैनियत पे चल रहे हैं, तो असल हकीकत तो इनके पास है, असल जो है रोशनी तो यहाँ से मिलेगी। वो डरते हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनका जो है जो उन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ था, गलत तरफ ले गया था, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। सही है। मुलाकात भी हुई है जी? मुलाकात हुई है मेरी। चल, बहुत सारा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बच्चा? ज़ुहैब अब्बास। ज़ुहैब अब्बास, किधर से आए हो? मैं लाहौर बत्ती चौक से। बत्ती चौक से जी।
घर वाले को बता के आए हो, भाग के आए हो? चोरी आया हूँ रात को 3 बजे का निकला हुआ हूँ, तो उन्होंने बोला था कि अगर वहाँ पे जाएगा तो घर वापस ना आएंगे। किसने बोला था? मेरे घर वालों ने, बाबा ने, पापा ने? पापा ने, मामा ने, चाचू ने, मामू ने, सब ने। वो क्यों? वो दरअसल उनकी और ही फील्ड है, वो बाबों को मानने वाले हैं, ठीक है, जिनकी ना तो खुद की कोई ताकत है, उनको मानते हैं। अगर में इतनी ताकत होती है वो मरते ही ना कभी। नहीं तो अब उनको कैसे पता चला था कि तू आ रहा है इधर? मैं उनको अभी तक नहीं पता, मुझे रास्ते में उन्होंने फ़ोन किया, मैंने वीडियो कॉल पे उनको दिखा दिया मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो बाबा का फ़ोन है, बाबा कहते हैं इधर ही रहना, घर ना। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? जाके मैं बात कर लूँगा सारी, उनको बता दूँगा इनके बारे में, कुछ बताऊँगा, कोई वीडियो दिखाऊँगा इनको, फिर इनको पता लगेगा ना कि क्या है रियलिटी, क्या है। ये हमें रियलिटी बता रहे हैं, ये हमें किसी कहानी के पीछे नहीं या ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा रहे कि उस बाबे ने 10 साल ऐसे कर दिया, उस बाबे ने 10 साल ऐसे कर दिया। ये हकीकत जो है वो हमें बता रहे हैं, कुरान और सुन्नत पर अहले बैत का हमें बता रहे हैं, हमें किसी बाबे का नहीं बता रहे। हमारे लिए हमारे नबी ने कुरान छोड़ा था, सुन्नत छोड़ी थी, अहले बैत का बताया था, हमें किसी बाबे का नहीं बताया उन्होंने कि ये बाबा ये है, ये बाबा वो है। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही। बाबा पढ़े लिखे हैं? ज़्यादा नहीं पढ़ा मैं। ज़्यादा नहीं पढ़े? चलिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कोशिश करती है इस तरह के माँ बाप से ना पंगा नहीं रहते, तोरिया ही करते हैं। मैं चुप कोई बहाना बना के कुछ और करके तोरिया कर लो कि मैं आया हूँ, वो कोई काम था कि दरबार पे जाना था, सो तोरिया बना लो यार। मैं खामोश रहता हूँ उनके सामने, इनका जिक्र करता ही नहीं हूँ मैं उनके सामने। मेरे दोस्तों के साथ भी काफ़ी मेरा झगड़ा हो गया हुआ इनकी वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि ये हक पे हैं, मुझे ये पता है। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में मुझे किसी ने बताया कि ये बंदा नहीं सही यार, ये गुमराह कर देता है। मैंने क्या करना, जो उनसे भी वीडियो उनके सामने आनी, मैं अकाउंट ब्लॉक कर देता था इनका। तो मैंने एक बार सोचा यार मैं खुद तो देखूँ वो चाहते क्या हैं। मैंने फिर उनकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की, तकरीबन मैक्सिमम 1 मंथ लगा मुझे, ठीक है। तो मैंने पता किया कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन अब वो हमें पता लगा कि वो हक की बात पर है, हक के रास्ते पे जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमें वो बताना चाह रहे हैं। बेशक ऐसा हमें किसी बाबे का नहीं बता रहे कि उस बाबे की मंजी हवा में उड़ गई थी, उस बाबे ने कब्र में धोबी को बुला लिया था, उस बाबे ने लोटे में बिजली कैद कर ली थी। ये चीज़ें ये बच्चों को बताने वाली होती हैं, छोटे बच्चों को रात को सुलाने के लिए ऐसी कहानी सुनाते होते हैं उनको। ये तो हमें रियलिटी बना उनको भी नहीं सुनाने वाली होती यार, वो सुना के तो बच्चे बड़े होकर फिर इन जैसे बनते हैं। तो बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, पहली मरतबा आना हुआ था, मैंने सोचा कदम उठा कर देखूँ। मैं पहले सोचा था कोई ये सेलिब्रिटी हैं बहुत बड़े जो किसी को मिलते नहीं हैं, फिर मैंने सोचा, मैं यूट्यूब पे देखा कि आपका लोकेशन कहाँ पे, लोकेशन निकाल के मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने पिक्चर भी खिंचवाई है उन्होंने मेरे साथ, अच्छे तरीके से पूछा भी उन्होंने मुझे कि कहाँ से आए हो आप, तो मैं एज पूछी है मेरी उन्होंने। तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा वेट करो, मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद उनसे मुलाकात होगी और अगर टाइम हुआ तो दोबारा आपसे बात करें। चल बहुत शुक्रिया बच्चा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अवैस महमूद। अवैस भाई किधर से आए हैं? चिश्तियाँ से, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर चिश्तियाँ। माशाल्लाह, इतनी दूर से? जी जी। खैरियत है? हाँ जी, ये मिलने आए थे, दीदार करने आए थे उस्ताद जी का। कौन से उस्ताद जी हैं? मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, माशाल्लाह ताला। जी माशाल्लाह। ये तो गुमराह आदमी नहीं? नहीं। और इसने तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा, बहुत लोगों को हदायत मिली है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। नहीं तो आलम दीन तो सारे खिलाफ हैं, वो तो कहते हैं इसको सुनना ही नहीं है। वो बस मैं क्या अल्फाज बोलता हूँ, वो उस्ताद जी कहते हैं नहीं गलत अल्फाज नहीं बोलने, वो खुद ही गलत बोलते हैं आलम दीन। हाँ जी, सारे। अच्छा, तो सारे आलम दीन जो हैं इंजीनियर साहब को, वो तो मिलके कह रहे हैं ये उम्मत का फितना है, वो दज्जाल है, वो बस गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं? हाँ जी, गलत कह रहे हैं वो। अच्छा, ये बंदा बहुत बहादुर बंदा है और बहुत अच्छा बंदा है। बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा। मुलाकात भी की है आपसे? हाँ जी की है, बहुत अच्छे बंदे। और कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? आज काफ़ी बंदे आए हुए थे, आपने देखी? मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ, तो बहुत बंदे सारे मेरा ख्याल पहली दफ़ा आए थे। काफ़ी हद तक बंदे पहली दफ़ा? हाँ जी। सही हो गया, चले बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।